Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So there is a media article about recruitment in SBI, and many of you have sent me the screenshot and you wanted me to explain the article because there is a lot of confusion going on among us, the candidate, by reading the article. Now in this article, it is mentioned that SBI to hire 15,000 staff in financial year 2025. Now this 15,000 includes the staff for bank as well as their operational subsidiary. So this is combination of both. So 15,000 is not only bank. So this we have to be very clear, because if we read the fine print of the article, we will be able to understand, because this article covers both put together. So the chairman has said that these will be used for operational subsidiary as well as branch network, and SBI to open 300 new branches also during the financial year. Now, one confusion has arisen out of this article, that whether there is any change in qualification for SBI Junior Associate or SBI PO, whether only engineers will be taken, whether the other stream people will be taken or not. In fact, if we read the fine print of the article, they have only mentioned that mainly the people, those are being selected, they are from engineering background. So they are not saying about changing the eligibility. What they are saying is, among us, the selected candidate, the most candidates are from engineering background. And since they are from engineering background, they would like to utilize their qualification in better way. That is the interpretation of the article. They have not, you can say, hinted at any change in eligibility. That means all graduates will continue to be eligible for SBI Junior Associate and SBI PO like now. From this article, we cannot conclude that only engineers will be taken, because some of you have mentioned, sir, now it is only open to engineers, whether we will not be eligible. Don't get any confusion. Nowhere it is mentioned that they are going to change the qualification criteria. They have only mentioned that usually the most of them are from engineering background, and this is a hard reality now in banking. The people, those are getting selection, they are largely from engineering background, because they are not getting employment elsewhere. This is a hard reality. Again, in this article, the chairman has clarified there is no bias for the bank for a particular segment of qualification. So they have mentioned that they are not doing any segmentation. It is a natural process that more people are coming from that background, and since they are coming from that background, they plan to utilize them in banking operations, for other roles, and some of them may be used in IT segment also. So this is what is the, you can say, the crux of the article. So we should not have any confusion, and this 15,000 is a natural number. If we look at the current year selections also, the number may add up to near that only, because there are vacancies for CBO, there are vacancies for PO, there are vacancies for junior associate, and there may be some subsidiary vacancies separately. So if you add, it may come closer to this number. So the only hint is that this year again you will see all the notification, that is SBI Junior Associate, SBI PO, and even CBO also, if we can hint for, and they will have recruitment in their operational subsidiary also. And I don't think you should keep anything in mind that only engineers are being taken by them. All persons, those are eligible today, are likely to be eligible in the coming selections also. So prepare well for SBI Junior Associate, SBI PO एंड CBO. गॉड ब्लेस यू ऑल. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एक मीडिया में आर्टिकल छपा है जिसके अंदर ये बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15,000 लोगों को हायर करने जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में.
अब इसको लेके आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे वो आर्टिकल की कॉपी भेजी है और चाहा है कि मैं उसके ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन दूं, क्योंकि कई लोगों ने उसको मिसरीड किया है, कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस भी उसमें चल रही है। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो 15,000 लोग होंगे खाली बैंक के लिए नहीं होंगे, ये 15,000 रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग है ऑपरेशनल सब्सिडरी की। तो बैंक के लिए भी रिक्रूटमेंट होगी और ऑपरेशनल सब्सिडरी के लिए भी रिक्रूटमेंट होगी, जो एक सेपरेट सब्सिडरी लास्ट ईयर एसबीआई ने बनाई है। 300 नई ब्रांचेस स्टेट बैंक खोलने जा रहा है, ये भी इस आर्टिकल में बताया गया है। तो ब्रांच नेटवर्क के लिए भी लोग लिए जाएंगे, जो कि जिस आजकल लिए जाते हैं, जैसे एसबीआई जूनियर एसोसिएट, एसबीआई पीओ, एसबीआई सीबीओ। तो इससे ये हिंट है कि ये तीनों नोटिफिकेशन इस साल भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी ऑपरेशनल सब्सिडरी है उसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट होगी, वो सेपरेट होती है। तो ये सब मिला के 15,000 होंगे। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न आया है कि उसमें एक शब्द यूज़ कर दिया गया है कि इसमें से अधिकांश लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। तो कई लोगों ने इंटरप्रिटेशन की है कि क्या केवल इंजीनियर ही एलिजिबल होंगे या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज करने जा रहा है स्टेट बैंक। ऐसा कहीं नहीं इसमें कहा गया है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एसबीआई जूनियर एसोसिएट की भी सेम ही रहेगी और एसबीआई पीओ की भी सेम रहेगी, अगर हम इस आर्टिकल को भी ध्यान से पढ़ते हैं। केवल इसमें ये हिंट किया गया है कि जो सिलेक्शंस हो रही हैं, जो अभी भी सिलेक्शन हो रही हैं, उसमें अधिकांशतः लोग वो हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। और ये सबको ही पता है, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको अपने फील्ड में क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, तो उसमें से अधिकांश लोग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर सेक्टर में ट्राई करते हैं और उसमें उनकी सिलेक्शन भी होती है। क्योंकि अधिकांश लोग, अब कैंडिडेट भी ज़्यादा है तो सिलेक्शन रेशो भी ज़्यादा है। मगर अदर स्ट्रीम के भी लोग पास हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इंजीनियर पास हो रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएट भी पास हो रहे हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट भी पास हो रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड के लोग भी पास हो रहे हैं, सभी लोग पास हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग मिल रहे हैं उनको, तो उनको वो और ज़्यादा गेनफुली एम्प्लॉय करने की कोशिश करेगा स्टेट बैंक। ये हिंट है इसके अंदर। उन्होंने कहा है कि हालांकि हमारा कोई बायस नहीं है कि हमें सिर्फ इंजीनियर लेने हैं या हमें नॉन इंजीनियर नहीं लेने, कोई बायस नहीं है, ये क्लियर किया उन्होंने। क्योंकि वो तो मेरिट बेस्ड है, जो रिटर्न पास करेगा, इंटरव्यू पास करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जूनियर एसोसिएट में तो खाली रिटर्न है, तो जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, जो मर्जी उसकी क्वालिफिकेशन है, वो तो पास हो गई। ऐसे पीओ के अंदर जिसके रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे पास होगा। मगर इस आर्टिकल में ये चीज़ क्लैरिफाई की गई है कि जो लोग वो पास करेंगे, जो सेलेक्ट करेंगे, उनको एक तरफ वो ऑपरेशनल एरिया में भी यूज़ करेंगे, अदर रोल्स में भी यूज़ करेंगे और आईटी सेगमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर हिंट है। इसके अंदर ये कई हिंट नहीं है कि क्वालिफिकेशन चेंज होने वाली है, जो काफ़ी लोग जिससे चिंतित हैं, जिस कारण आप लोगों ने मुझे वो आर्टिकल भेजा। अगर मैं इसकी बिल्कुल फाइन प्रिंट पढ़ता हूँ और बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, तो मेरा कंक्लूजन ये है कि कोई चेंज नहीं है क्वालिफिकेशन के अंदर एसबीआई। और सिर्फ इसमें हिंट ये है कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट भी आ रहा है इस साल, आपका एसबीआई पीओ भी आ रहा है और एसबीआई सीबीओ भी आ रहा है। क्योंकि अगर 15,000 का आंकड़ा है तो ये तभी बनेगा जब ये तीनों एग्ज़ाम हो रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो एसबीआई जूनियर एसोसिएट, एसबीआई पीओ, एसबीआई सीबीओ और जो उनकी ऑपरेशनल की वैकेंसीज थी वो मिला के लगभग इसी आंकड़े के आसपास है। तो सिमिलर आंकड़ा उन्होंने एंटिसिपेट किया है। तो ये क्लैरिफिकेशन है। अपनी तैयारी जारी रखें, बेकार चिंतित ना हो। जो लोग एसबीआई जूनियर एसोसिएट की तैयारी करना चाहते हैं, ऑल ग्रेजुएट, उनको तैयारी करनी चाहिए। जो एसबीआई पीओ की तैयारी करना चाहते हैं, ऑल ग्रेजुएट तैयारी करें। और जो सीबीओ की तैयारी करना चाहते हैं, जो दूसरे बैंकों में ऑलरेडी हैं और एसबीआई में जाना चाहते हैं, वो भी अपनी तैयारी जारी रखें। जो मुझे समझ आया है वो मैंने आपको इसमें बता दिया और आई थिंक यही प्रिवेल करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।